out, our first would be to find square root of any number on number line. Again, I'm telling you, not seen this question coming in the main exam, but maybe unit test में आपको डाल ही सकता है. Okay, to find square root of any given number or any real number to be the right word. So we say let the number be x and we are supposed to compute how much? Root x. More than drawing, try to understand the analytical geometry part. Drawing में ज़्यादा उतना कुछ नहीं है. How we do it? Say we have been asked to find root x. This root x can be, children, they will give you either say 9.1, 6.3 ऐसे numbers देगा आपको. 4.8. इससे पहले आप कौन सा रूट्स प्लॉट करते थे? Roots of all non-perfect square, 2, 4, 6. Right now they will be giving you say root 9.1 or say root 4.2 ऐसे प्लॉट करने. So I am writing that number is x. Let us first understand why that thing is actually. So what we should first do is take a scaled what do you call measurement and draw whatever is your x. Say your book says that plot root 3.2. If I'm at your place, I will take 3 inches and 0.2. That is the best way. 3.2. So how much is this? This is my x, AB, and I will ensure that my AB is equal to x. I'm just writing the steps how to do it. Got it? Once AB has been done x, so what we do, we keep this extended, इसको extend करके रख देते हैं straight line में, और B में हमने mark कर लिया है where AB is x. After that, B से आप क्या कीजिए? B से you straight away go 1 unit. So suppose they had told you plot root of 3.2. This is 3.2, and as per your scale, you go ahead another 1 unit. So 1 more unit. This is 1 more unit. यहाँ तक कोई doubt? So this is BC. So our step 2 will be, we will make BC equal to 1 unit. And AB is equal to x. This is as per your scale. Whatever scale you have taken, 3 centimeters, 3 inches, जो भी आपने लिया है उसमें कर लीजिए. Clear हुआ? Okay. इसके बाद आपका third process रहेगा to find midpoint of AC. तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? We have to do perpendicular bisector. Do you know how to draw perpendicular bisector? Take your compass in such a way that you put it on A and take the radius more than half. Your wish. More than half मतलब आपको यहाँ doubt हो रहा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए. More than half. And once you have taken more than half, do not disturb the measurement. Do not disturb your compass. Put an arc on the top and put an arc on the bottom. And with the same measurement, now come to C and intersect the previous 2 arcs. In this way, what you are doing? You are getting the perpendicular bisector. ऐसे common sense में सोचो ना आपने क्या किया. यहाँ से यहाँ measurement बराबर, यहाँ से बराबर means isosceles triangle हो गया. और isosceles triangle को हमेशा you actually created a rhombus. Or rhombus का diagonals always bisect each other. That funda you used. So you get a midpoint. तो मैंने उस midpoint को यहाँ पे mark कर लिया. So let's say उसका midpoint कुछ इस तरह आएगा. AC का midpoint, okay? AC's midpoint will be somewhat like this. Clear हो गया? और इस point को मैंने नाम दे दिया O. O. Clear बेटा? अब midpoint of AC आने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से? We get a AO which is equal to a OC which should be equal to x plus 1 divided by 2. X plus 1 divided by 2. Midpoint है तो. Clear? Anyone who has not understood so far? ठीक है बेटा, सबसे पहले x नाप लीजिए जो भी आपको दिया, उसके बाद 1 जोड़िए, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए, तो फिर ये मेजरमेंट इसके बराबर हुआ. OA is OC which is x plus 1 by 2. Understood? Now what you do? अब आप with OC as the radius and OA जो भी है, you actually make what is called a semicircle. So
this feature does not allow me to do a semicircle, so I am doing a circle. Don't mind है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और फिर मैं उसको पुश करूंगा अंदर. ओके, ज्यादा हो गया है. अभी ज्यादा. Children, just concentrate on the semicircle part. Just concentrate on the semicircle part. Understood? So with OA as radius, I have made a semicircle. Once you have made this semicircle, you are now supposed to make a perpendicular from B on the circle. A perpendicular from B on the circle. So it's something like this. B से एक perpendicular draw करेंगे इस circle के ऊपर. ठीक है बच्चा? और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको we are giving a name as D. ठीक है? So once this is done, then step number 4. Step number 4 is BD is made perpendicular to this particular line AC, या फिर यहाँ पे X डाल के रख देता हूँ. Let's say AX के ऊपर perpendicular कर लिया. अब यहाँ से if you don't know how to draw perpendicular, आप प्रोटेक्टर लगा के बना लीजिए, आपका perpendicular बन गया. ठीक है? And the fifth is your finding. They always say that BD will be equal to root of X. BD will be equal to root of X. So what you do? You actually take B as center and D as radius. तो एक और सर्कल बनाता हूँ. ठीक है? Hold कीजिए. Don't get carried away. You will understand. Just 1 minute. So let's make one more circle like this and take this circle in such a manner that, yeah. Now forget every other part. I have taken B as my center and BD as radius. So what do I get? I get a point out here. So this point is equal to, say, what? BP. Don't you think, children, that BP is equal to BD? They are radius of the same circle. And so this point will be root of X. कैसे हुआ वो भी देखेंगे. पहले स्टेप समझ लेते हैं. स्टेप्स क्या था? I am asked to plot root X. First of all, whatever is that X, उसको आप मेजर करके एक AB बना लीजिए. AB equal to X. The question may say find root of 7.5. So I'm giving an example. Find root of 7.5. तो मेरा and I'm writing it with green color pen. Okay. Find root of 7.5. तो मैं AB को कितना बना लेता हूं? 7.5 as per my scale. 7.5 सेंटीमीटर्स बना लो. बेस्ट. अंडरस्टूड? उसके बाद मैं BC को 1 यूनिट करता हूं. मतलब इसको अगर इतना सेंटीमीटर किया, इसको 1 सेंटीमीटर करता हूं. उसके बाद मैंने BC ड्रॉ किया. फाइन. आफ्टर दैट आई फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है? तो मिड पॉइंट ऑफ AC जो भी आ गया, and that is equal to AO, which is equal to this. ये कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है. Whatever you get. And then when you get B से BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. BD and BD को रेडियस बना के आर्क ड्रॉ कर दीजिए. Whichever point it is intersecting, that point is root X. Clear? ये है कंस्ट्रक्शन. लेकिन ये होता कैसे है, अब वो देख लेते हैं. रेडी? So let's see how this happens. इसे छोटा कर लेता हूं. Right. Now put your eyes, or rather concentrate your eyes on this triangle. इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. राइट? सो इन दिस ट्राइंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? वी सेड BD शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ X. है ना? इसको अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे. कैन यू से BD इज इक्वल टू रूट ऑफ,
बी डी इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। देखो तो बच्चा ये बोल सकता है कि नहीं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम सबसे पहले ओडी को मेजर करते हैं। ओडी इज नथिंग बट ओसी नथिंग बट ओए which should be equal to x plus 1 by 2. Do you agree? OD is the radius of the same circle as OC as OA which is half of x plus 1 by 2, क्योंकि आपने पूरे को हाफ किया था। क्लियर यहां से? अभी कोई डाउट है? तुम क्लास 8 में 7 में फिर भर्ती हो जाओ ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो जब भी आप किसी दूसरे साइड को निकालते हो तो कैसे निकालते हो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। इसलिए बोलता हूं, नहीं पढ़ते हो ना 8 में, देखो अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा, मैं दिखा दूं तुम्हें समझा, तुम्हारे लेवल में दिखाता हूं। देखो तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तुम्हें ये वाली भाषा समझ में आएगी। ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। देखो ये पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगा। आया ना? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ऑल्दो यू आर फिजिकली सिटिंग इन ग्रेड 9, intellect is at grade 7 level. Now children, let us transpose. We want BD square, so it is OD square minus OB square. Understood? That means BD should be equal to root under OD square minus OB square. Understood? देखो चेहरा खिलखिला गया, अब समझ में आया ना? अब की बार से ये याद रखना, सुनते जाओ, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अगर कोई भी साइड निकाल रहे हो, कोई भी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू हाइप स्क्वायर माइनस बाकी वाला साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लो, अभी लिख लो। कोई भी साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बाकी वाला साइड स्क्वायर। नहीं, बात नहीं, आप लिखिए। अभी भी 9 में भी आप सुधर सकते। कहां पे स्क्वायर मिस किया? हाँ वो जो छोड़ दो ना। हाँ इस तो देन यू आर सुपर इडियट। वो लड़की मुझे बोल रही है कि आप स्क्वायर मिस किए। अब तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है, शायद मैंने लिखा भी होगा, इट्स अ लाइट पेन, समटाइम्स यू नो इट गोज अवे। कभी कभी देखना टी लिखने के बाद भी मिट जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिटता है, हो सकता है नहीं लिखा, पर इतना कॉमन सेंस नहीं है। इसके लिए तुम एक आदमी को देख रहे हो, सब है सर, पर वो एक टांग उठा के खड़ा है ना, इसलिए मुझे लगा वो आदमी नहीं कोई और प्रजाति है। अरे थोड़ी होता है, ये लिख लो, काम में आएगा। यस no issues as long as you understand. Now just put this formula here. देखो इधर देखो, is BD कोई भी साइड? yes, it's not hypotenuse. कोई भी साइड इज इक्वल टू हाइप स्क्वायर माइनस बाकी वाला साइड स्क्वायर। ये लिख लो, देसी फॉर्मूला, तुम्हारी काम में आएगा। चले आगे। एक प्रॉब्लम करूं क्या, मतलब सत्यानाश टाइम। और फिर क्या चाहिए हमें? ओबी चाहिए। अच्छा, ओबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? ओबी है ओसी माइनस बीसी। देखो तो ओबी है ओसी माइनस बीसी। ठीक है, ओसी की वैल्यू कितनी है बेटा? x प्लस 1 बाई 2 माइनस बीसी की वैल्यू तुमने 1 लिया था, है ना, तुमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो इसको छोटा कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको एक बार में लिखूंगा, 2 एलसीएम होगा 2, 1 माइनस 2 इज -1, सो दिस विल बिकम x माइनस 1। अब बोलो, ये भी समझ में नहीं आया? आ गया तो समझ में। अभी तो तुम्हें नहीं भी आएगा तो भी समझ में आएगा ना, इज्जत वाली बात हो गई अभी। ठीक है, अब डाल दें उनको। ठीक है, सो लेट्स डू। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? इसके बाद ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, तो ओडी तो हमें मिल गया, सो वी आर सपोज टू गेट बीडी। आवर बीडी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। कितना होगा? 2 स्क्वायर मतलब 4, ऊपर कितना हो गया? x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ये भी तो 4 ही है, तो मैंने 4 लिखा नहीं, या फिर तुम्हें लिख के चाहिए? समझ में आया? -4 और ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? 4 and 4 एलसीएम इज 4। 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई रूट 2। अंदर चलो, क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
फिर माइनस है, लेकिन याद रखना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, क्योंकि माइनस ट्वाइस ए बी के साथ माइनस है। समझ में नहीं आया? अरे वाह। अच्छा, तो फिर क्या होगा, +1 हो गया -1। अब यहां प्यार से आप कटिंग करते जाओ। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काटा, 1 ने 1 को काटा, कितना हो गया बेटा, √4x हो गया हमारा अंदर कितना, √4x डिवाइडेड बाई 2। √4x बोले तो कितना है, √4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। √4 बोले तो 2 इंटू, सॉरी ये x होगा, √4 इंटू √x, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू √x डिवाइडेड बाई 2। 2 ने 2 को काटा, आया √x। दिस प्रूव्स, यार वो कोई प्रूफ करने नहीं बोलेगा, बट यू शुड बी हैप्पी ना। ऐसा कैसे सर आप बोल देते हो? सो BD's वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू √x। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए, एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग? प्रोसीजर समझ में आया? ये प्रूफ कैसे है समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं अगले प्रॉब्लम्स। हाँ लिख लो। प्रोसीजर याद रखना, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके बराबर AB, add 1 from your side and then bisect it, then make a semicircle. This should not be full circle, just semicircle. अगर बुक में भी है ये, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज, आपका रिकॉर्डिंग भी है, आप तब देख के भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में अगर कहीं दिया तो आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा, बोलेगा ड्रॉ, तो आपको आना चाहिए कि ये होता है √x और इसके रेडियस में। चले आगे, श्योर हुआ? तो कोई बात नहीं, लिख लेना, प्यार से लिख रही है तो क्यों रुके, लिख लो। Why are you writing in such a small copy? Huh? Nowadays, I never get angry on these questions. I only laugh. So, you know, BP cannot increase. Haha. I asked you a question. Why are you writing in a small copy? So your next question is, should I buy a bigger one? No comments. Mathematics, and from this year age onwards, try to write as much as possible on white papers. Then your handwriting improves. Then you learn to write straight, because next on exams that you go, you're not going to get rule books. And secondly, a short book in mathematics, after writing this much, see, I get irritated. Why did I make it small? Otherwise, I have to go to a next screen. Every time you go to a next page, you have to go to a next page. But if it is the book is a little bit bigger, it allows you to do more number of steps rather than doing it in a chota book. Chota books are good for guitar classes and all, in maths class. Many times children say, sir, I didn't have, should I buy? It is cheaper than a Baskin Robbins ice cream that we eat. And in Amazon, it is available on a sale. I don't say any more than that. Okay, chale, aye. So let's go with our problems. I have brought a lot of problems. Right. So this is where from our main exercise starts. ठीक है, हर टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। आप अपना टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, we are supposed to add this with this. When you are adding and you have got a radical number, radical is what? इसको radical बोलते हैं, √3, √5 जो भी है radical। आप ये याद रखिए कि we can always add like radicals. माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। एक √3 दूसरे √3 के साथ ऐड हो सकता है। मल्टीप्लाई के टाइम में कोई भी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे ही खानदान में शादी होनी चाहिए। समझ में आया? और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्यार जाति धर्म नहीं देखता है, कोई किसी से भी शादी कर सकता है। समझ में ना? ऐसे बोलने से सबको याद रहता है। चले इसको ऐड करें। तो यहां सबसे पहले देखिए, ओके, रादर देन डूइंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये √2 वाला टर्म है, इस साइड में भी √2, ये एक ही जाति वाले हैं, इनके बीच में शादी पॉसिबल है क्योंकि आपको ऐड करने बोला है। सो 3√2 प्लस √2, इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं। 3 मैंगो प्लस 1 मैंगो, √2 मतलब इसके सामने 1 है। 3 मैंगो प्लस 1 मैंगो, हाउ मेनी मैंगो? 4
मैंगो, वेरी गुड। सो 4√2 हो गया। और इस साइड में क्या है? 7 करेला माइनस 5 करेला। कितना करेला? 2 करेला, 2 करेलास। फर्दर और कुछ होता है सर? इधर आम और इधर करेला, ये प्रॉब्लम और आगे नहीं जाता है। और थोड़ा आप स्टाइल मारने की कोशिश करोगे तो 2 को कॉमन लेके 2√2 माइनस √3 ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसा किसी ने आपको बोला तो नहीं, लिख सकते हैं। Anyone, any doubt on this problem? Your job should be to hunt the like terms as long as you are doing what बेटो? Addition and subtraction. आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं। इसमें बोला मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या है? ये लव मैरिज है, इसमें जाति धर्म कुछ भी नहीं है, प्यार अंधा होता है। चलो शादी करा दो इनकी। 5 into 3 कितना होता है बेटा? 15। √11 into √11 11। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। √11 into 11 स्क्वायर कितना होता है? 11। 11 स्क्वायर 11 होता है। 11 स्क्वायर का √11 होता है ना? तो 15 into 11 कर लो, ये आता है करना। 15 1 कैरी ओवर, 15 1 and 1 16। क्लियर? अच्छा मान लो यहां पे ऐसा होता कि इधर आम होता और इधर करेला होता, तो आप क्या करते? 5 into 3 15 हो जाता, लेकिन ये तो लव मैरिज है, सब शादी पॉसिबल, तो √AB हो जाता। क्लियर? भाविया क्या डाउट है? बोलो बेटा। हाँ 1 मिनट रुक जाइए। ये वाले बेटा हम एडिशन कर रहे थे। एडिशन में अपने खानदान में ही शादी होती है, और ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है। इसमें आप जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं, प्यार अंधा। तो आपने 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ बेटा? 15। रेडिकल में मैंने ए लिया और इधर बी लिया, दोनों अलग अलग हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रेडिकल ऑफ ए बी। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट रुको, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो a to the power m multiplied by b to the power m, हम ग्रेड 8 में पढ़ चुके हैं। दिस इज ab to the power m, ये पढ़ चुके हैं हम ग्रेड 8 में। यहां भी तो वही हुआ था बेटा, a to the power half का मल्टीप्लिकेशन हुआ था b to the power half, तो आपने इसको ab to the power half लिख दिया, और ab to the power half is nothing but √ab and a to the power half is nothing but √a, this is √b। तो क्या गुना किया आपने? अब समझ में आया? हाँ हाँ, ये +2 √3 होगा। हाँ वो करेक्ट है, अलजेब्रिक मिस्टेक। क्लियर है? अभी हमने ऐसा बोला तो हमको कितना डांटा, उसको नहीं डांटा। सामर्थ के मन में यही सवाल घूम रहा है, तुम्हारे मन में नहीं, उसके मन में है ना। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। लड़के टफ होते हैं ना, एक लड़की को ऐसे बोलना ठीक नहीं लगता है, अब सब बड़े हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 15 √15। अभी देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एग्रीड? इन डिवीजन वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द रेसिप्रोकल, मतलब ये भी एक तरह का लव मैरिज ही है, इसमें हर कोई किसी के साथ। लेकिन फिर देखेंगे क्या, इफ दिस इज करेला, इज देयर अ करेला हियर? आई कैन सी अ करेला हियर। 5 into 3, तो उसको मैं हैंडल करना होगा, तो डिवाइड बोला है। किसको डिवाइड कर रहे हो बेटा? 5 √15 is being divided by 3 √5। 15 √15 is divided by 3 √5। तो हमने क्या लिखा? 15 √15 into 1 by 3 √5। क्लियर है यहां तक? डिवाइडेड मतलब ये हो गया ना। अब आप नॉर्मल डिवीजन फॉलो करो। 3 ने 15 को काटा 5 से, अग्रीड? और स्टेप जंप मत करो, 5 ले लो और √15 को लिख लो √5 into √3, और नीचे कितना है बेटा? √5। इस √5 ने √5 को काटा, आंसर आया 50 √3। क्यों भाविया, फिर से क्या टेंशन है? बोलो। क्लियर है ये? नहीं रुकने का, हम समझ के नहीं जाएंगे तो आगे प्रॉब्लम होगा। अगर क्लियर नहीं, हाँ, तो ये 15 जो है ना, इसको एक चीज याद रखो बेटा, मैं सबका एक ही प्रॉब्लम देख रहा हूं। 15 को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, लिख सकते हैं ना।
और इसमें आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि ये, अब आप अपना वही वाला लॉजिक याद करो ना, ये क्या था, लव मैरिज, मल्टीप्लाई हो सकता है, जाति धर्म नहीं देखता है। यही अगर एडिशन होता तो आप एक छतरी के अंदर नहीं डाल सकते। क्लियर? हाँ, अत्रेय हो रहा है ना, खाली पानी ही पी रहा है तू, दिमाग भी भर रहा है तो किडनी के साथ। वेरी गुड। ऑल ऑफ यू, है ना, अदिति, कार्तिका, ऑल, इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? हर्षित, ओके। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेडी? हाँ, मल्टीप्लाई क्या था, बाइनो इंटू बाइनो, ये तो बाइनोमियल है। तो सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू डू, आई एम राइटिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 2। सबसे पहले 3 निकलेगा और उस ब्रैकेट को रेड करेगा, हो गया। देन वट एवर इज द साइन दैट कम्स इन बिटवीन, नाउ √3 गेट्स आउट एंड reads the bracket as 2 plus √2. Are we fine on this? अब क्या हो गया, मोनो इंटू बाइनो। ए भाविया, जब मैं ये कर रहा हूं तुम उसको देख रहे हो, या तो साथ साथ करो या साथ साथ समझो। अब सुनो, बाइनो इंटू बाइनो, सबसे पहले एक टर्म निकलेगा और इस ब्रैकेट को रेड करेगा, फिर जो साइन है वही बैठेगा, ये निकलेगा और फिर इस ब्रैकेट को बारी बारी से। अब ये हो गया मोनो इंटू बाइनो, अग्रीड? चलिए, 3 इंटू 2 कितना होता है बेटा, 6। 3 इंटू √2, 3 √2। √6 होने के लिए √3 होना पड़ेगा। 3 इंटू √2 इज 3 √2। समझ में आया? अच्छा, अब यहां क्या हुआ, √2 इंटू 3, तो आप बोलोगे √2 3, 2 √3, ठीक है ना, 2 √3। और √3 इंटू √2, ये जो तुमने बोला वो होगा √6। अब मल्टीप्लीकेशन गायब हो चुका है, एवरीथिंग इज एडिशन, एवरीथिंग इज एडिशन। डू यू एग्री? नाउ वी हैव टू सी खानदान खानदान वाला खेल देखना है। √2 इंटू √3 लिखने से फिर 2 और √2 का एडिशन नहीं होगा ना, बात समझ में आ रहा है? वो भी करके दिखाता हूं आपको। अब आप जरा देखो तो, 6 √3, 3 √2 ये अलग है, 2 √3 अलग है, √6 भी अलग है। मेरे हिसाब से हम यही इस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। What Samarth is trying to say, he is saying, sir, it is √3 √2. Then it becomes, वो अगर सामर्थ का स्टेप करेंगे तो कैसा होगा, देखो तो ये स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, C3 प्लस √2 प्लस 2 √3 प्लस √3 √2। अग्रीड? नाउ व्हाट वी कैन डू इज 6 प्लस 2 √3, मतलब मैंने इसको यूज कर लिया, इसको, ये दोनों एक ही है ना, किरोड़ीमल किरोड़ीमल, तो इसमें क्या करता हूं, 3 प्लस √3 को कॉमन ले लेता हूं और √2 को बाहर। ये एनालिसिस का पैरालिसिस है, नहीं करने से भी चलता है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तुम क्या है ना, स्विम सूट में कॉलर स्टिच कर रहे हो, शर्ट में स्टिच करो, नहीं होने से भी चलता है, करने से कोई गलती नहीं है, बट यू आर, कैन यू पीपल ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर ओन? डन? वाओ, कितना है आपका आंसर, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों आप गधे की तरह कर रहे हैं? हाँ, क्यों एक्सपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं, ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 5 माइनस 2 विच शुड बी 3। इसका आंसर 3 आना चाहिए। देखने के बाद भी प्रॉब्लम देखिए, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसका आंसर आएगा a स्क्वायर 36 माइनस 6, 30 आएगा इसका आंसर। ये समझ में आया कि नहीं? भाभिया, चेहरा कैसा बना रहे हो? ये देखो, ये है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, 6, b कौन है, √6। a का स्क्वायर कितना हुआ, 36, b का स्क्वायर 6, बोले तो 30। इसको कैसे करोगे सर? इसको भी मैं बाइनो बाइनो, इसको फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 √6 प्लस b स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या, 3, 3 प्लस 2 5, इसका आंसर आएगा 5 प्लस 2 √6। क्लियर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So children, by now have you understood
what did you understand that given a problem of this nature, देखो तो root a plus root a, yes definitely I can add them to root a. root a plus root b, ये कुछ नहीं होगा, आगे और प्रोसीड नहीं होता है, नहीं होगा, ये इसमें ही रह जाएगा. root a multiply, it becomes a. root b, it becomes root of ab. भाई बात समझ में आया? किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलो. चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा तो मैं होते ही रहता हूं. कौन से थर्ड वाले में? थर्ड a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए तो बेटा. a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 3 का स्क्वायर 2 रूट 3 होता है. रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या? नहीं, ये सब डाउट बेटा क्लियर होना है लाइफ में. रुको. रूट 3 को हमें किसी ने स्क्वायर करने बोला, समझ में आया? लेट अस फर्स्ट सी एक्सपोनेंट. 3 टू द पावर हाफ का मल्टीप्लीकेशन 2 से हो रहा है, तो 2 इसके साथ कट नहीं जाएगा, 3 नहीं होता है. और अगर ये भी नहीं आता है तो ऐसे करो, रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन दोबारा रूट 3 से हो रहा है ना कैसे पकड़ेंगे अभी? 3 to the power half multiplied by 3 to the power half, x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n. और अगर मैं ऐसे देखूं कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है तो भी 3 होता है. हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या? फिर समझ में क्या नहीं आया उस प्रॉब्लम में? 3 हो गया और ये 2 रूट 6 हो गया, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2. और 3 और 2 को ऐड करने से 5 नहीं होता है. ओ हाँ, मतलब कुछ नया चीज बोला क्या मैंने? और 2 रूट 6. चले आगे, चलिए. अच्छा 1 सेकंड नहीं, 2 सेकंड, आप 3 सेकंड ले लो, पर आप समझ के करो. अदिति क्लियर? नो डाउट सो फार? हर्षित ऑल ओके? अच्छा, आई थॉट ही वाज मोर इंटरेस्टेड टू मिनिमाइज द अदर विंडो. स्कोर देख रहा है क्या पैरेलली? अच्छा नो गुड. हाँ पता नहीं आज इनका इंटरनेट इतना इंग बैंग कर रहा है, कहीं मेरा इंटरनेट तो स्लो. नो. Are the frames hanging or is it continuous to you? Is the... Sir, it's hanging. Why is it hanging? Yes, sir. It should not be. मुझे भी लगा बीच में. हमारे यहाँ तो आज मैं ही चला रहा हूँ, कोई और तो डिवाइस भी नहीं है किसी का. नहीं, मोबाइल से मतलब नहीं है. लेटेंसी ज्यादा होगा. हाँ 34, थोड़ा सा लेटेंसी बढ़ा हुआ है. इट हैपेंस समटाइम्स. ज्यादा कोई मैच वैच देख रहा होगा. ये डबल डिजिट में हो जाने से आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. स्पीड इज नॉट द इशू, द लेटेंसी. हाँ मेरा 90 भी है. 90 नहीं, स्पीड से कोई मतलब नहीं, लेटेंसी देखा कीजिए. हाँ लेटेंसी डबल डिजिट में हो जाना, 10-14 के ऊपर जाने से आपका हैंग करना शुरू करेगा. ठीक है, स्पीड तो 3 Mbps में भी आपका वीडियो जाएगा. स्पीड एज मेनी पीपल थिंक बाय इंक्रीजिंग द स्पीड इट विल कम करे, नथिंग टू डू. चले आगे. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू विल गेट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. सर प्लीज मेक माय चाइल्ड मोर अटेंटिव इन क्लास. उसका मतलब क्या है? राइट नाउ चाइल्ड का कंडीशन क्या है? चाइल्ड इज क्या है? अगर पेरेंट ने बोला प्लीज मेक माय चाइल्ड मोर अटेंटिव, इसका मतलब अभी वो क्या है? लेस अटेंटिव. यहां पे बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका मतलब अभी डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्म में नहीं है. आपने शायद स्कूल में ये किया होगा, लेकिन आप ये सवाल ही नहीं पूछते मैं ये कर क्यों रहा हूं. Rationalize the denominator. That means the denominator as it is appearing now is not in rational form. Obviously, what is the denominator? Root 5. Root 5 is a irrational number.
और हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल रखने का प्रोटोकॉल नहीं है। समझ में आया? आइए, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, √5 को रैशनल करना है। सो द इजीएस्ट वे इज व्हाटएवर इज द डिनोमिनेटर वी मेक अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला सौदा। तुमको भी √5 डेयरी मिल्क देंगे, तुमको भी √5 डेयरी मिल्क देंगे। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो अब कितना हो गया नीचे बेटा? नीचे 5 बन गया और ऊपर बन गया 3√5। हमें बोला था rationalize the denominator. Now what is the denominator? 5. Is 5 a rational number? Yes. अपना काम खत्म हो गया। भाव समझ में आया इस बार? रितिशा अंडरस्टूड? वेरी गुड। चले एक और टाइप देखते हैं। आइए, इस बार कहता है ऐसे टाइप, और यहां से शुरू होता है, आपके प्रॉब्लम्स ऐसे ही आएंगे। इसको रैशनलाइज करो। अब सबसे पहले सवाल पूछो, क्या ये इरेशनल है? 1 मिनट। This is rational, this is irrational. Rational plus irrational is always irrational. जहां इरे आएगा वही वायरस। ये रैट इरैट है, तो ये हमेशा इरेशनल होगा। ऐसे चीजों में हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक चीज लाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। सीखो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है, वो पपेट शो देखते थे बचपन में, एक आता था जंगली तूफान टायर पंक्चर, तुम लोग नहीं देखे हो। उसमें ऐसा आता है, जो बोलोगे उसका उल्टा बोलना है, काला घोड़ा ऐसे। इसका भी उल्टा। कॉन्जुगेट मतलब सेम टर्म लेकिन बीच वाला जो साइन है ना वो स्वैप कर देना है। इसको हम कुछ और बुक्स में ये भी बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब तुम्हें एक ऐसा मिडिलमैन लाना पड़ेगा जो कि मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो कॉन्जुगेट होता है, अगर आपके पास a प्लस √b है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस √b। ठीक है, अगर आपके पास -a प्लस √b है तो क्या करेंगे, पहले आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख लो ना, √b माइनस a। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, √b प्लस a। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास नेगेटिव a नेगेटिव √b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, दो तरीके से देख सकते हैं। नेगेटिव a प्लस √b भी देख सकते हैं, और नेगेटिव को कॉमन लेके a प्लस √b a माइनस √b भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा नेगेटिव a प्लस √b। भाई साहब, ये कांड समझ में आया आपको? अब इस कांड को अगर समझ में आया तो आइए इस कांड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश पे ही तो दुनिया कायम है। आइए, तो प्रॉब्लम को कैसे लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, 1/8 प्लस 5√2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 5√2, और यहां भी करेंगे 8 माइनस 5√2। क्योंकि नंबरें बहुत शर्मीले हैं, इन्हें आप ब्रैकेट्स में डाल दीजिए तो आपके साथ त्रुटि होने के चांसेस कम हैं। अब अपनी नजरों को बड़े कीजिए और नीचे देखिए, फॉर्मेट हो गया a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मेट देखते ही आपके मन में लड्डू फूटेगा और आप खुश होके बोलेंगे वाह, ये तो a² माइनस b² हो गया। और इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये जो √2 भूतनिका है वो गायब होगा। 8 का स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, ऊपर तो 8 माइनस 5√2 ही हो जाएगा। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम में जब इक्वल टू लिखते हैं ना, द इक्वल टू इज ऑलवेज इन लाइन विद दिस, इसलिए इक्वल टू लिख के लाइन डाल दीजिए। 8 का स्क्वायर हो गया भाई साहब 64, 5 का स्क्वायर है 25, और √2 का स्क्वायर है 2, माने 50, और ऊपर कितना हो गया 8 माइनस 5√2। नीचे जाने से बच्चों के सर दिखेंगे, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूं। 64 से 50 जाने से कितना होता है बेटा 14, और यहां हो गया 8 माइनस 5√2। अब बच्चों जरा देखो, इंजेक्शन से थोड़ा खून चूस सकते हो? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है 8 और 5 में। अगर यह इवन नंबर रहता तो थोड़ा ड्रैकुला बन सकते थे, थोड़ा सा खून चूसो और नीचे से चूसो और जितना काट सकते हो काट देना।
अब हम नहीं काट सकते तो यहाँ पे हम हमारा आंसर लिख के इस प्रॉब्लम को ओम स्वस्तिन स्वाहा खत्म करते हैं। क्लास खत्म नहीं हुआ यार, प्रॉब्लम खत्म हुआ है खाली, खुश मत हो जाए ना। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम मैं नोबेल प्राइज के लिए लिखूंगा। दीप्ति, यू हैव अंडरस्टूड? ओह यस, मुझे पता ही नहीं चलता दीप्ति आती है। क्लियर? So much ready? Getting slowly? I'm getting to know the animal now? Yeah, it doesn't bite. It only bites at your end in the form of mark sheet, you know. Otherwise, it's such a lovely pet. I love clicking pics. Me and rational numbers. Selfie. चले आगे। चलिए, अब ऐसा नंबर आ गया जहां की नीचे भी आफत है, ऊपर भी आफत है, पर बड़ा सुंदर चीज होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 6 - 4√3। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे हो जाएगा क्या? नीचे हो जाएगा a² - b², ऊपर हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। ठीक है, चलें इसको करें। आइए सामर्थ, तू ना ये सब प्रेडिक्शन, ये जो योगी महाराज की तरह तो बोलते रहता ना शनि का दशा है, बृहस्पति अच्छा है, ये सब छोड़ के पेन और बुक से पेपर प्रॉब्लम कर। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, और ओवर कॉन्फिडेंस ना वो गर्लफ्रेंड है जो तुमको ऐसा धोखा देगा लाइफ में, सारी जिंदगी मुंह में दाढ़ी बना के ना कविताएं लिखते रहोगे फिर उसकी याद में। छोड़ के चली गई बालम मेरा, है ना, और फिर बन जाना उस क्लब का मेंबर। कौन सा क्लब? फॉसला, FOSLA। उसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड सिंगल्स लवर्स एसोसिएशन। ठीक है, और उसका राष्ट्रपति बन जाना तू भाई साहब। खाली ओवर कॉन्फिडेंस, पहले सॉल्व कर। चलो नीचे ऊपर क्या हो गया? 6 - 4√3 होल स्क्वायर, और नीचे 6² प्लस नहीं होता है, यू भूतनिकास, माइनस होता है। हाँ, उसके साथ बैठते हो ना, इसलिए तुम्हारी ये हालत है। हाँ, अपना कमरा बदलो और चतुर्लिंगम का कमरा पकड़ो। 36 - 4² इज 16, 16 3 कितना हो गया? 48। ओ नीचे नेगेटिव हो रहा है भाई साहब, ऊपर क्या हो जाएगा? a² - 2ab। आई एम जंपिंग स्टेप, यू डोंट जंप। -2ab, 2 6 12, 12 4 48√3 प्लस b²। b² मतलब 4 4 16 एंड 16 3 48। भाई आगे सॉल्व करो, कितना हुआ? 36 और 48 से कितना होता है? 12, -12, -48√3 डिवाइडेड बाई -12। अच्छा, आप थोड़े से इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सीखो। कैसे? इफ यू कैन स्क्वीज नेगेटिव कॉमन फ्रॉम द टॉप। देखो सब में नेगेटिव है ना, ये सब काट सकते हो आप। एक्चुअली कैसे काटा मैंने? दिस इज एक्चुअली, इसको हम कैसे काट रहे हो? इट्स सेम एज 12 + 48√3। दिस स्टेप इज सेम एज दिस, so you can actually take out this negative and this negative. Yes, कौन सा? हाँ, तो माइनस होगा, छोड़ दो, फिर गलती हो गई मेरे से। हाँ बताओ कितना होगा? 36 और 48, 8 और 6 14, 84 हो गया ना। 6 and 8 14, 84 minus 48 divided by -12√3। अब -12 काटता है इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 48√3 - 84 डिवाइडेड बाई 12। इसको क्या क्या चेस की तरह कैसलिंग कर दिया। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव ऊपर गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम हियर, देन इट बिकम्स व्हाट? स्टेप को नेगेटिव कॉमन लो। नेगेटिव कॉमन लेने से -84 + 48√3 होता है, और नीचे कितना है? -12। ये दोनों कट गए। अब 12 से काटो इसको। 12 4 48, 12 7 84।
तो आपका आंसर कितना हो गया 4√3 माइनस 7। सर अगर मैंने -7 प्लस 4√3 लिखा कुछ गलत है? नथिंग गलत। As long as your terms are same, everything is correct. Do you get it? ठीक है, ठीक है ना आंसर? किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। Whoever has not understood, again every time I say do not suppress. तो आपके इसमें एक्सरसाइजेस आ जाएगा RS अग्रवाल में 1, I think 1F, 1E, all these are for this exercises only. कौन से बेटा यहाँ पे छोड़ दिए? अगर देखो यहाँ पे छोड़ने से थोड़ा नंबर तो कोई काटेगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव छोड़ने का प्रचलन नहीं है। आप जूते पहन के किसी के घर में नहीं घुसते ना, ऐसा वैसा है। नेगेटिव को एटलीस्ट ऊपर उठाइए, और उसके बाद भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन अभी आपको काटेगा 9 में, क्योंकि ये वो चेक करना चाहता है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आए हैं कि नहीं। तो प्रेफरेबली कर लीजिए। क्यों 12 का टेबल याद नहीं है? तो आप फिर 2 से करो ना, उसमें क्या टेंशन है। चले एक और। अब ऐसे टाइप प्रॉब्लम, ये है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर टर्म एग्जाम्स, हाफ ईयरलीज। अच्छा, यू नो इन 9 यू विल हैव अ प्री बोर्ड आल्सो, सम स्कूल्स हैव 2 प्री बोर्ड्स आल्सो। तो ये प्री बोर्ड का एकदम स्टैम्प्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे पहले सुनिए। अच्छा देखो, तो ये नंबर क्या था? इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। थोड़ा सा पहले चलते हैं। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, आंसर क्या आया आपका? सम इरेशनल नंबर आया। अगर इस प्रॉब्लम में मैं आपको कहता, ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं आपको कहता a प्लस b√3, ये प्रॉब्लम ऐसा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हम क्या करेंगे? हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 4√7 माइनस। हम उस आंसर को इस पैटर्न में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? -7 प्लस 4√3। दिस वाज आवर आंसर व्हेन वी सॉल्व दिस पर्सन, वी गॉट दिस आंसर। दिस इज इक्वल टू क्या है? a प्लस b√3। अब हम एक स्टेप लिखते हैं। अरे ये तो वही बिमला की बेटी है। कंपेयरिंग द टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे? a शुड बी -7 एंड b शुड बी +4। ये तो फॉर्मेट है ना। हमने बोले थे कि यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स और यहाँ पे आया ऋषि एंड मनोज। तो हु आर द 2 पार्टिसिपेंट्स? ऋषि एंड मनोज। हाउ डिड यू कंपेयर? लेकिन एक चीज याद रखिए, व्हेन यू कंपेयर यू राइट लाइक दिस, a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ माइनस होता तो b का फॉर्मेट होता -4। से सपोज से अगर ये चीज माइनस होता, कैसा? से फॉर एग्जाम्पल, if this number would have been a minus, if, then I'll write this number like this: 7 plus -4√3, and now compare with it. A is -7, B is -3. We had a plus here also, we have a plus here also. Ditto number to number match करेंगे, बिंगो मैड एंगल की तरह। तो अगर आपने इसको समझा तो मुझे आराम देखिए, इसे आप खुद करने की कोशिश करेंगे। योर फर्स्ट जॉब शुड बी ऑलवेज स्टार्ट द प्रॉब्लम विद लहस। स्टार्ट द प्रॉब्लम विद लहस। व्हाट इज लहस? 3 + √2, 3 - √2। यही ओलंपियाड में आएगा तो कैसे करोगे? a + b² डिवाइडेड बाय a² - b²। So our left hand side is this. Our first job will be to rationalize this. So how do we rationalize? We look at the denominator. What is the denominator? And I'm not angry about somebody not solving maths. That is of least important. You can be a good student in literature, psychology, history, whatever. But your personality has to improve. And that's what I am very particular about. 3 - √2. And 3 - √2 is my denominator. So my numerator is 3 + √2. 3 + √2. Rationalizing factor. Now my denominator is in the form of a + b into a minus b, so it becomes a² minus b². Children, keep an eye. I may go on a mistake somewhere, so please. 3 + √2 whole square. The denominator now changes to 9 - 2,
and 3 plus root 2 whole square is how much? 3 square plus 2 into 3 into root 2 plus root 2 square. Okay, so taking it forward, how much does it become? 3 square is 9, then 6 root 2, very good, then root 2 square is 2, and denominator is how much, beta? 9 minus 2 is 7. Further we take it, 9 plus 2 is how much? 11 plus 6 root 2 upon 7. This is my LHS. But my format needs to be like this. तो इसको हम तोड़ेंगे थोड़ा सा. We're gonna write it as 11 upon 7 plus 6 by 7 root 2. Right? Now we come back to our, what is our RHS? Our RHS is A plus B root 2. Now we write comparing the terms of Lahas and Rahas. If you compare the terms of Lahas and Rahas, just see, do we have a root 2? Yes, we have a root 2. Then A should be 11 by 7. We have a plus. That means B should be equal to 6 by 7. It is your class. Baito, bolo, sir, samajh mein nahi aaya. No, sir. So what you are saying? Do as much fun as you want. Enjoy the class. Chuppi maar ke kuch nahi hota hai. You know, all animals, they look at us and say, देखो इतना interesting आदमी है, लोग बात करता है, हम लोग कल करते रहते हैं. Animals are jealous of us. Can an ant speak? No. Your birth is very blessed that you are a human being. बहुत सारा पुण्य करने के बाद इंसान का जन्म होता है. बात कीजिए, कितना सुंदर है, दुनिया wants to listen to you. है ना? अत्रेय को देखो, ऐसे बात करता है. जिस दिन मैं गुस्सा करता हूँ, चुप्पी मार के बैठ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कुछ बोलने से ही अगर डोज गिर गया, चुप रहो. इसका हालत अभी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है, कुछ बोलने से ही मिसाइल मार देगा, चुपचाप बैठा रहो. अंडरस्टूड? वेरी गुड. नाउ शैल वी टेक वन मोर. ये टाइप का प्रॉब्लम, ये थोड़ा रुलाएगा. इसमें क्या करना है? सबसे पहले x को सॉल्व करना है, बिकॉज x इज इन इरेशनल फॉर्मेट. सो अगेन यू विल डू अप एंड डाउन, वो सब करके यू विल गेट अ नंबर क्यूब माइनस 2x. बट a क्यूब, डू यू नो क्यूब फॉर्मूला बाय नाउ? आपने क्यूब नहीं सीखा है. क्यूब वी एक्चुअली लर्न इन ग्रेड 9. तो पहले क्यूब का फॉर्मूला लिखिए. राइट डाउन. a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अग्रीड? और जब आपको कोई बोलता है a प्लस बी होल क्यूब, तो आपकी कैसा है, लिवर बाहर आ गया. भाई ये कुछ और नहीं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर ही तो है ना? सो बेसिकली यू आर डूइंग अ बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ ट्राइनोमियल. अगर कुछ भी नहीं आता है तो. हाँ बोलो बेटा. हाँ वो फॉर्मूला है, वो कैसे आता है वो भी जानना है, याद करके कभी मत जाइए. तो ये यहां पे लिखते हैं पहले. आओ, कितना हो गया? a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज. a क्यूब 2a स्क्वायर b, ab स्क्वायर, a स्क्वायर b, 2ab स्क्वायर, b क्यूब. भाई साहब समझ में आया? आप देखो तो कुछ लाइक टर्म्स हैं. 2a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, दे आर लाइक टर्म्स. ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म्स है. तो इसका फॉर्मूला आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. देयरफॉर the formula for a plus b whole cube is given by a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. This is the formula. ठीक है? इसको बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा तड़का लगा के लिखते हैं. 3ab इंटू a प्लस b, ऐसे भी लिखते हैं. एक ही बात है, 3ab कॉमन लो, a प्लस बी हो जाएगा. अच्छा, अब मान लो ये फॉर्मूला में माइनस आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब.
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा सोचो इसका फॉर्मूला कैसा होगा। ए पॉजिटिव नंबर है ना, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव ही होगा। व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज नथिंग बट ए प्लस नेगेटिव बी होल क्यूब। ये और इसमें कोई फर्क है नहीं है ना। ए पॉजिटिव है तो ए का क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, बी नेगेटिव है तो बी का क्यूब नेगेटिव आएगा। फिर यहां पे देखो ए स्क्वायर, ए तो ऐसे भी पॉजिटिव है पर बी का पावर क्या है 1 और बी नेगेटिव है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। बी नेगेटिव है पर बी स्क्वायर टर्म में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम इस फॉर्मेट में देखें तो कैसा होगा, यहां पे a माइनस बी होगा और फिर ऑटोमेटिकली आप देखो 3a² बी, सॉरी यहां पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस रिटेन करेंगे तो प्लस माइनस 3a² बी और ये वाला माइनस हो जाएगा। कौन सा? हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। गुड। सो a माइनस बी होल क्यूब इज, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज दिस माइनस, सो a क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab², a² भी, अच्छा ये माइनस होगा, प्लस 3ab²। Can you attempt this at home then? Don't worry. Try and attempt. First try to find out this number. And then इसको डाल दो। ये कभी कभी प्री बोर्ड में आता है बेटा तरपाने के लिए, इतना ही ला के रहा था। अब मैंने आपको सारे टाइप्स के करवाए हैं, आप अपने घर में इनको कर सकते हैं। Should anyone not understood anything and if you still have hesitation to speak, even the Teams forum is there, you can ask, I can again send. And the recording will be there, you can go through the recording, but for God's sake, yes sir, that should be, voice should be with full Yes, sir. My life is gone. Oxygen is very less in your house. How can you talk like that? ठीक है, क्लियर? चलिए, closing the recording then.